All right, let's settle down. आइए हम सब बैठ जाए। Good morning, church. सुप्रभात कलीसिया। I'm coming up here after really long and I'm feeling super nervous today. और मैं बहुत समय बाद आई हूँ तो थोड़ा हिचकिचा रही हूँ। Last night I was telling Rohan, I'm really enjoying motherhood, sitting at the back over there and playing with my baby. तो मैंने रोहन को कहा था कि मुझे वहाँ पे माँ बनने के बाद अच्छा लग रहा था पीछे बैठे रहना। Yeah, but somehow every time I get comfortable at the back, God pulls me up in front. पर जब भी हम ऐसे आराम स्थान में पहुंच जाते हैं तो यीशु हमको आगे लेकर आता है। But it's not about me, right? It's about Him. क्योंकि वो हमारे बारे में नहीं है, उनके बारे में है। All right, so we're going to look at the story of the Samaritan woman. तो हम ये सामरी स्त्री की कहानी देखेंगे। And we all know the story. Jesus meets with her at the well. He has a conversation with her. और हम सब जानते हैं वो कहानी जहाँ यीशु इस स्त्री से मिलता है कुएं के यहाँ पे और उससे बातचीत करता है। But we're just going to read through that verse before we get into it. तो हम वचन की ओर आएंगे। So we're going to look at the book of John. तो हम यूहन्ना की किताब में देखेंगे। And I'm going to read from verse 9 onwards. और यूहन्ना 4 उसका 9 से। The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than the father Jacob, who gave us the well and drank from it, as did also his sons and his livestock?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I will give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." यहूदी लोग सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ सामरी स्त्री के से पीने के लिए पानी मांग रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम परमेश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कह रहा है मुझे पानी पिलाओ, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको यहाँ संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान है? उन्होंने हमें यह कुआं दिया, वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी इस कुएं से पीने के लिए पानी पोते थे। यीशु ने कहा, जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह उसमें जल स्रोत बन जाएगा, जो शाश्वत जीवन तम उमड़ता रहेगा। So, as you know, we've been going through this entire section now of justice and mercy. तो हम देख रहे हैं जैसे हम ये दर्शन के तीसरे भाग में हैं जहाँ पे न्याय और दया से कार्य करने के बारे में हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं। And even when I preached from this verse last time on Women's Day. और जैसे मैंने जो महिलाओं का दिन था तभी भी इसी वचन से बांटा था। We saw how Jesus, even just standing there and speaking to the Samaritan woman, was an act of mercy. और हम देखते हैं जैसे यीशु इस सामरी स्त्री से बात करता है वहां, वो भी एक दया का कार्य है। We looked at how he broke all social barriers, all cultural norms, and he stood there and spoke to this woman. और हम देखते हैं कि कैसे यीशु हर एक सामाजिक बाधाएं है उसे तोड़कर उस स्त्री से बात करता है। But today we are going to dig a little deeper into this passage. परंतु आज हम और गहराई से इस वचन में देखेंगे, इस कहानी में देखेंगे। And we see that Jesus didn't just stop there. और हम देखेंगे कि यीशु सिर्फ वहां रुके नहीं। If you look at the life of Jesus, और जैसे हम यीशु का जीवन देखते हैं, whenever he shows mercy to someone, it completely transforms their life. जब भी वो किसी को दया दिखाते हैं तो उनका जो जीवन है पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाता है। Now let's look at what is mercy. और हम देखेंगे आज की दया क्या है।
Mercy is when we don't get judgment we deserve, but instead receive kindness. और दया वो चीज है जहाँ हमको न्याय से जो योग्य है वो नहीं मिलता है, परंतु दयालुता दिखाई जाती है। But is that all that Jesus was doing here? पर इतना ही है कि जो यीशु कर रहा था। We heard last Sunday the message of Zacchaeus the tax collector, तो and हम जक्कई की कहानी देखते जो चुंगी लेने वाला है, and how Jesus completely transformed his life. और कैसे यीशु उसका पूरा जीवन परिवर्तन कर देता है। And then we also hear about Matthew, another tax collector. और फिर हम और एक चुंगी लेने वाले के बारे में जानते हैं, Jesus calls him to be his disciple. और उसको यीशु अपना चेला बनने के लिए कहता है। Peter, who so many times disappointed Jesus. पतरस जो यीशु को बहुत बार निराश कर चुका है, At least he felt he was disappointing Jesus. उसे ऐसे लगा कितने बार कि उसने यीशु को निराश किया है। Yes, Jesus used him so amazingly to spread the gospel. फिर भी यीशु ने उसका इतने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया वो वचन बांटने के लिए। And the thing is, in the world today, there is so much of evil around us और अभी हम देखते हैं दुनिया में कितना दुष्ट चीजें हो रहे हैं that even a small act of kindness कि अगर हम एक छोटी सी कार्य करें जिसमें हम दया दिखाए, can be misunderstood as mercy. उसे गलती से जो दयालुता दिखाए उसे गलती से दया समझी जाती है। But the mercy that Jesus is calling us to have is one that transforms lives. पर जो दया यीशु हमें कह रहा है दर्शाने के लिए वो लोगों के जीवन को परिवर्तन करता है। We cannot equate our level of mercy to the standards of the world. और हम जो हमारी समझ में जो दया है और दुनिया की समझ में जो दया है उसे समानता में नहीं रख सकते। Jesus is calling us to partner with him and show mercy just like he does. और यीशु कहता है कि उसके साथ हम लोगों को ऐसे दया दिखाए जैसे वो चाहता है। You know, you may have a colleague who is having a rough day because someone is sick in the office. तो ऐसे कोई आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं जिनका दिन अच्छा नहीं गया हो क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है परिवार में। Yeah, someone is sick in the family, and you end up saying, "Okay, I'll cover your work for you." तो आप शायद कहोगे उनको कि आपका जो काम है वो भी मैं कर लेता हूँ आज के लिए। Or a friend who has wronged you and you still forgive them. या कोई दोस्त है जिसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है और आप फिर भी उससे क्षमा देते हैं। And these are all great acts of kindness. और ये सब दयालुता की अच्छी अच्छी कार्य है। But is this the mercy that Jesus is calling us to have? पर क्या यही दया है जो यीशु हमें बुला रहा है दर्शाने के लिए? I think Jesus is calling us to have mercy just like he did. यीशु हमें शायद ऐसी दया दर्शाने बुला रहा है जो वो दिखाता है। That one that transforms lives. ऐसी दया जो लोगों के जीवनों को परिवर्तन कर देता है। So are you with me? तो आप हमारे साथ हैं? So even as I was preparing this message, God was speaking to me, my और own heart. जैसे ये वचन मैं तैयार करी थी तो प्रभु मुझसे बात कर रहे थे। And I pray today that he speaks to each one of us. और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी से भी बात करें। Now you see here that Jesus didn't just stand here with this Samaritan woman, talk to her, maybe help her draw water out from the well and then leave. और हम देखते हैं यहाँ यीशु सिर्फ वो सामरी स्त्री से सिर्फ बातचीत नहीं कर रहा है या उसे पानी निकालने में मदद नहीं कर रहा है और वहां से निकल गया, ऐसा नहीं है। He started having a deeper conversation with her about her life. तो वो शुरू करते हैं उसके जीवन के गहराइयों में बात करते हुए। You know, I have a family member who was always struggling with finances and running into debt. तो ऐसा एक व्यक्ति है मेरे परिवार में जो कर्ज में रहता है। And everyone in the family keeps providing and keeps helping whenever we can. तो सब परिवार होने के नाते उससे मदद करते हैं। But no one has actually sat down with this person and understood why they are always struggling with finances. Why are they getting into debt? पर कोई उनके साथ ऐसे बैठ के जाना नहीं कि उनको आर्थिक स्थिति क्यों हो रही है, क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं। And we can do that with the people around us in our lives, right? और शायद ऐसे ही हम अपने आजू बाजू जो लोग हैं, अपने जीवन में जो लोग हैं, उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। We want quick solutions and we want the problem to just go away. हमें चाहिए कि एक जल्दी समाधान मिले और जो भी परिस्थिति है वो चली जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। Someone needs money, give them money, let it go. अगर किसी को पैसा चाहिए तो पैसा दे दे और बस वो परिस्थिति और वो चीज खत्म हो जाए। Or you may be a boss in the office and someone comes to you saying that, you know, I'm really struggling and blah blah blah, and you're like, okay, take a day off.
तो आप ऐसे बॉस हो सकते हो शायद कंपनी में, और कोई आके कहे कि बहुत तकलीफ में जा रहा हूँ मैं या संघर्ष हो रहा है, तो बॉस होने के नाते बोलोगे अच्छा ठीक है छुट्टी ले लो एक दिन की। Or you may know someone who's struggling with addiction, pornography, anger, depression, marital issues. और ऐसे कोई लोग हैं जिनको लत है किसी चीज की, या उनको अश्लील चित्र देखने की लत है, या उनको कोई विवाह में Struggling with a sickness. या कोई बीमारी है जिससे वो गूंज रहे हैं। You know, when I was preparing this, I started beginning to think, what will I do? तो मैं जब ये तैयार कर रही थी वचन, तो मैंने ऐसे सोचा कि ऐसी परिस्थिति में लोग मेरे पास आए तो मैं क्या करूंगी। The most I will do as a Christian is say, let me pray for you. ज्यादा से ज्यादा मैं शायद उनके लिए प्रार्थना करूंगी, And then I want to run as far as possible from them. और फिर मुझे इतना दूर भागना है उनसे कि वो मुझे देख ना पाए। So God was speaking to my own heart and revealing my own wickedness or limitations. तो जो चीजें मैंने अपने हृदय में सीमित कर दी है, और जैसा मेरा हृदय है उसको यीशु के सामने जांचा। The mercy that I will show him is that I'm not judging them, I'm praying for them, I'm still loving them. और जो दया मैं दिखाऊंगी वो ये है कि मैं उनका न्याय नहीं कर रही हूँ, उनके बारे में कुछ ऐसे सोच नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ प्रेम दिखा रही हूँ। We don't want to uncover the mess. तो यीशु को उनकी जो गड़बड़ी है उसे से ढकना नहीं है। We don't want our hands to get dirty. हम नहीं चाहते कि हमारे जो हाथ है वो गंदे हो, But Jesus here does exactly that. पर यीशु ने यही किया। Mercy brings truth with grace. ये जो दया है वो सच्चाई को अनुग्रह में लेकर आती है। We're going to look at verse 15, 16 and 17. और 15 से 17वां वचन देखेंगे हम। The woman said to him, Sir, give me water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. और उस स्त्री ने कहा यीशु से कि महोदय मुझे ऐसा जल दीजिए कि मुझे प्यास फिर से ना लगे और मैं इस कुएं के पास ना आऊं। And Jesus tells her, Go call your husband and come back. और यीशु उससे कहता है कि जाओ और अपने पति को बुलाकर लेकर आओ। Does it ever happen to you? You ask Jesus for something and he asks you another question. आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने यीशु से कुछ मांगा है और यीशु ने कुछ और ही प्रश्न किया हो आपसे? Now, what does the woman say? तो स्त्री इसमें क्या उत्तर देती है? I have no husband. उसने कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। Was she being completely honest with Jesus? क्या वो सच्चाई में जवाब दे रही थी यीशु को? Jesus said to her, You are right when you say you have no husband. The fact is that you have 5 husbands, and the man you are with is not your husband. What you have just said is quite true. तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ तुम अभी रहती हो वो तुम्हारा पति नहीं है, यह तुमने ठीक ही कहा है। Now, Jesus already knew everything about her life. यीशु उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानते थे, But he didn't start with condemnation. पर उन्होंने दोष लगाते हुए शुरू नहीं किया। He asked her, Go and call your husband. उन्होंने कहा कि जाओ और अपने पति को बुलाकर लाओ। Probably he was giving her a moment to introspect on her own life. तो शायद यीशु चाहता था कि वो अपने जीवन में देखे, आत्मनिरीक्षण करे। 5 marriages, even though it was possible that time, तो 5 शादियां और उस वक्त क्या वो संभव था? was extremely unusual and brought a lot of social stigma. वो बहुत ही ज्यादा असाधारण स्थिति थी और सामाजिक तरीके से बहुत दोष लगाया होगा उस पर। And in both Jewish and Samaritan cultures, a woman couldn't initiate divorce. और यहूदी और सामरी दोनों संस्कृति में जो डिवोर्स है वो स्त्री नहीं ले सकती थी। So it was most likely that her husband were putting her away multiple times. तो ऐसा हो सकता है कि उनके जो पति है उन्होंने बहुत बार इसको छोड़ा होगा स्त्री को। And she was currently living with someone who was not her husband. और अभी जिसके साथ रह रही थी वो पति नहीं थे। So it seemed likely that the woman was actually the problem. तो ऐसे दिखने में आता है कि सच में जो कठिन व्यक्ति था उस संबंध में वो स्त्री थी। And Jesus probably knew that. और यीशु शायद जानते थे ये चीज। But he still doesn't begin with condemnation. पर शुरू करते हुए वो दोष से नहीं शुरू करते। He just gives her the plain and simple truth about her life. यीशु उसके जीवन के बारे में एक साधारण तरीके से जो सच्चाई है वो बताते हैं। How many of us like to hear the truth about ourselves? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपने जीवन के बारे में सच्चाई सुनना पसंद है?
As Christians, we say we love the truth. हम मसीह होने के नाते कहते हैं कि हमें सच्चाई से बहुत प्रेम है, But what about when it's directed at us? पर जब वो हमारे बारे में हो तो हमें कैसे लगता है? When I went last year or 2 years ago, I was alone on my trip for work in Malaysia. तो पिछले साल या 2 साल पहले मैं एक काम से मलेशिया गई थी। And I had just switched between a corporate job and started working with the organization that I currently am. It's a Christian organization. तो मैंने तभी ही अपना काम है वो बदला था, तो मैं एक कॉर्पोरेट काम से जो मसीह कंपनी है उसमें ज्वाइन की थी। And in my previous job, I was already in a manager's position, working with big government officials, sitting with different tourism ministers. तो पिछले काम में मैं पहले ही मैनेजर थी और ऐसे मंत्रियों से मिलना और बड़े बड़े जो अधिकारी है उनसे मिलना, ये सब होता रहता था मेरे काम में। And when I left and I joined here, I was assistant to the CEO. और जब मैंने काम छोड़ा और मैं ये जो अभी काम कर रही हूँ वहां मैं लगी, तो मैं एक सीईओ की असिस्टेंट थी। And I used to take great pride in my work in my previous organization. और मैं बहुत गर्व करती थी पिछले काम में जो मेरा स्तर था और जैसे मैं काम करती थी। And I was really struggling to fit into this new role. और मैं बहुत संघर्ष कर रही थी ये जो नए काम में नई पद पे रहने के लिए। और एक दिन जैसे मैं अपने कमरे में थी और आराधना कर रही थी, And God revealed what was in my heart. तो प्रभु ने ऐसे चीजें दिखाए जो मेरे हृदय में है। He showed me so clearly how my identity was rooted in the position and the work that I did. तो यीशु ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया कि मेरी जो पहचान है वो मेरे काम में और मेरे पद में कैसी बनी हुई है। And I was in shock. और मैं एकदम अचंभित हुई। Because according to me, I am a very good person. क्योंकि मेरे हिसाब से मैं बहुत ही अच्छी व्यक्ति हूँ। And God reveals the things of our heart that are unclean and brings us closer to Him. पर यीशु हमारे जो हृदय में चीजें चलती है वो सब हमें बताता है, वो प्रकाश में लाता है। Just as He was giving this woman truth. जैसे यीशु इस सामरी स्त्री से बात कर रहा था और उसे भी बता रहा था, Without any condemnation. बिल्कुल भी दोष लगाए बिना। Did we ever think or can we even think of speaking the truth as an act of mercy? क्या हम कभी भी जो सच्चाई की बात है उसे दयालुता में दिखाते हुए कह सकते हैं, ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं? Jesus yet was standing with the Samaritan woman, knowing all her flaws, knowing exactly who she is, and He was still standing beside her. और यीशु फिर भी सामरी स्त्री के पास ही खड़ा था, उससे बात कर रहा था, उसके जीवन के हर एक चीज को जानते हुए। We all have that one friend or one family member in our life who's always complaining. तो हमारे जीवन में या हमारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो हर बार सिर्फ शिकायत करते रहते हैं। And we as very good Christians offer our shoulder to cry on. तो हम अच्छे मसीह होने के नाते हमारा जो कंधा है वो उनको रोने के लिए देते हैं। And somewhere in our hearts we also know that that person has some issues. पर हमारे हृदय में हमको पता है कि उस व्यक्ति में बहुत सारी चीजें हैं जो उनको ठीक करनी है। But we are so afraid to speak the truth. पर हमको कितना डर लगता है कि हम इनसे सच कैसे बोले। What if they get hurt? What if they stop talking to me? क्या उनको दुख पहुंच जाएगी कहने से, या वो हमसे बात करना बंद कर देंगे? Is that the mercy Jesus is calling us to offer? ऐसी एक दया है क्या जो यीशु हमको कह रहा है दर्शाने के लिए? Jesus calls us to have mercy that goes beyond kindness. तो ऐसी दया यीशु दर्शाने के लिए कह रहा है जो दयालुता से भी आगे है। It's something much deeper. जो बहुत गहराई में कार्य करता है। He's calling us to bring mercy that brings truth. ऐसी दया जिसमें हम सच्चाई भी लाते हैं। Jesus shows mercy that is more than just an act of kindness. तो यीशु ऐसी दया दर्शाता है जो दयालुता के कार्य से बढ़कर है। He brings truth. वो सच्चाई को लाता है। And truth that sets free. ऐसी सच्चाई जो आजादी देती है। Not truth to bring down someone. ऐसी सच्चाई नहीं जिससे हम किसी को नीचा दिखाए। But truth that can actually set them free. पर ऐसी सच्चाई जो सच्ची में उन लोगों को आजादी दे। Jesus doesn't even stop there now. अब यीशु सिर्फ उतर तक ही रुक नहीं जाते। He does something more for this woman. और वो इस सामरी स्त्री के लिए इससे ज्यादा करते हैं। Verse 25 and 26. 25 और 26वां वचन। The woman said, I know the Messiah is coming,
When he comes, he will explain everything to us. स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो परमेश्वर के अभिषेक जन कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वह आएंगे तब हमें हमें सब कुछ बता देंगे। He revealed himself. Jesus declared, I the one speaking to you, I am he. यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। Now, she was the first person in the Bible who Jesus had spoken to directly and said that he was the Messiah. शास्त्र में वो पहली व्यक्ति है जिससे यीशु ने बताया कि वो मसीह है। This Samaritan woman, ये सामरी स्त्री, while Jesus gave her the truth about her life, यीशु ने उसके जीवन की सच्चाई उसे बताई, he also brought the truth about who he is. तब यीशु ने खुद की सच्चाई भी उसको बताई। Are you still with me? क्या हमारे साथ है अब? Jesus is raising our standards of mercy together today. तो यीशु जो हमारा स्तर है दया दिखाने का वो बढ़ा रहा है। Mercy is just not an act of kindness. तो ये दया सिर्फ एक दयालुता का कार्य नहीं है। Mercy is God looking at us in our worst moments and saying, I see you, I love you, and I will not give up on you. दया वो है जहाँ हम बेकार से बेकार परिस्थिति में हो, वहां यीशु कहता है कि मैं तुम्हें देखता हूँ और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। So that family member or friend who is always struggling and can't get through or is always coming to you crying with problems, तो ऐसा कोई दोस्त या परिवार का कोई व्यक्ति जो हर बार संघर्ष करता है और वो रोते हैं और वह आपके पास आते हैं, maybe it's time we start giving them the truth शायद अभी वो समय है जहाँ हम उनको सच्चाई बताएं with the love of Jesus. और यीशु के प्रेम में बताएं। Maybe it's just us saying, hey friend, it seems like you have an anger issue. You know, Jesus can help you with that. तो शायद इससे शुरुआत करे कि कहे कि ए दोस्त, शायद आप में क्रोध की परिस्थिति है, तो आप उससे पहले जूझे। It can be something just as simple as that. वो इतना साधारण हो सकता है। Can we learn to be merciful like Jesus? क्या हम सीख सकते हैं जैसे यीशु दया दिखाता है वैसे हम दिखाएं? Getting under the mess, जो लोग गड़बड़ी में है उसमें हम जाए bringing truth with love. और जो सच्चाई है उसको प्रेम से दिखाए। Now, what stops us from showing mercy? और ऐसी कौन सी चीज है जो हमें रोकती है दया दिखाने से? Pride. घमंड, I'm better than everyone else. मैं सबसे अच्छी हूँ। Jesus called out the pride in my heart so many times. और यीशु ने मेरे अंदर जितना घमंड है उसको कितने बार दिखाया है, प्रकाश में लाया है। When I used to go into office to work, जब मैं ऑफिस में जाती थी काम करने के लिए, I'm a very competitive person. My husband knows that. मैं ऐसी व्यक्ति हूँ जो स्पर्धा करती हूँ And I want to be the best at everything. और मैं जो भी कार्य करती हूँ मुझे उसमें सबसे अच्छा काम करना है। So I used to go and sit quietly, do my work and leave. तो मैं अपने ऑफिस जाती थी, एक जगह बैठती थी, शांति से अपना काम करती थी और वापस आती थी। And my friends used to ask me, my colleagues used to ask me, why don't you come and chill with us, have lunch with us, have tea with us? तो मेरे जो दोस्त थे या जो मेरे साथ काम करते हैं वो लोग कहते थे, हमारे साथ आप चाय पीने या फिर भोजन करने क्यों नहीं आते हो, या ऐसे ही हमारे साथ बैठने भी क्यों नहीं आते हो? No, I have very important work. You all sit and waste time. I am doing my work. तो मैं कहती थी कि मुझे बहुत महत्वपूर्ण काम करना है, तो आप अपना समय व्यर्थ कीजिए, मैं नहीं आ रही हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। So one day Jesus nudged me to go and sit with them. तो यीशु ने ऐसे एक हल्के से धक्का दिया और कहा कि जाओ उनके साथ जरा बैठो। And in my mind, this is a big waste of time. और मेरे दिमाग में ये बहुत ही ज्यादा समय का व्यर्थ है। But I just obeyed and I started going and talking to them. पर मैंने आज्ञा का पालन किया और बस उनके साथ बैठी, उनके साथ समय बिताया। And over a period of time, we all became very good friends. और कुछ ही समय में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। And if you remember when we had our first visitor Sunday, और अगर आपको याद है जो पहला रविवार था जहाँ हम लोगों को बुलाए थे, I had 6 people from that team come in here. तो मैंने 6 लोगों को अपने काम के यहाँ से बुलाया था। Now our pride can get in the way so many times. तो हमारा जो घमंड है वो हमारे रास्ते में बहुत बार आ सकता है।
And many times we can also say we are just busy, I don't have time, blah, blah, blah. तो बहुत समय हम ऐसे कह सकते हैं कि मैं बहुत ही बिजी हूँ और मेरे पास समय नहीं है, और बहुत सारे अलग अलग बहाने दे सकते हैं। But Jesus, the Savior of the world, जो यीशु है, जो दुनिया का उद्धार करता है, was standing with the Samaritan woman. वो इस सामरी स्त्री के साथ खड़ा था। Who am I to think that I am better than anyone? तो मैं कौन हूँ जो सोच सकती हूँ कि मैं किसी से भी बेहतर हूँ। Okay, maybe self-righteousness can stop us. तो शायद आत्म अधार्मिकता हमें रोक सकती है। I am right, I can never be wrong. तो मैं सही हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती, I do this as well. और मुझे सब पता है, I do this. I do. और मैं ये करती हूँ बहुत बार। I told you, right? God was speaking to me as I was और preparing. मैंने आपसे कहा ना कि प्रभु ने मुझसे बहुत सारी चीजें बात की जब मैं ये वचन तैयार कर रही थी। Every day I have to remind myself that Jesus has called everyone so differently. हर दिन मुझे ये याद दिलाना पड़ता है कि यीशु ने हम सबको बहुत अलग तरीके से बुलाया है, And he uses us all so और differently. हमारा इस्तेमाल भी बहुत अलग अलग तरीकों से करता है। Unforgiveness. क्षमा ना करना, They don't deserve to be forgiven. तो हम ऐसे सोचते कि वो योग्य ही नहीं है कि उन्हें क्षमा किया जाए। Have you ever thought like that? आपने कभी ऐसे सोचा है? I definitely have. मैंने जरूर सोचा है। You know that news article or that video that is going around right now? तो एक ऐसा चीज है जो इंटरनेट पे चल रहा है। The CEO was caught at one of these big concerts having an affair with the HR head. तो ऐसे एक सीईओ है जिसका एचआर हेड के साथ कोई रिश्ता था, तो उनको ऐसे पकड़ा गया था उसमें। They are both already married. They are both married. वो दोनों शादीशुदा है, And the camera went on them as they were hugging each other at that concert. और कैमरा उनके पास गया और वो चीज पकड़ी गई जैसे वो गले लगा रहे थे एक दूसरे को। And the whole world is making jokes about them और right now. पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है अभी उनका। And even when I saw it, I was like, very good. They deserve it. और जब मैंने देखा तो मैंने भी कहा बहुत अच्छा, ये यही योग्य है। Really, they deserve it. क्या सच्ची में यही योग्य है उनके लिए? What about me? मेरे बारे में क्या Only I. चाहिए और मैं ही योग्य हूँ उसकी, And they deserve judgment और उनको न्याय ही मिलना चाहिए, वो उसी के योग्य है, because their sin is different than my sin. क्योंकि उनका पाप मेरे पाप से बहुत अलग है। All of us want Jesus' sweet mercy, हम सबको यीशु की जो ये मीठी दया है वो चाहिए, but Jesus' mercy goes beyond us. पर यीशु की दया उससे भी आगे जाती है। None of us deserve it, हम में से कोई योग्य नहीं है, but He gives it to us freely. पर हम सबको यीशु उससे मुफ्त में देता है, Not just to impact our own lives, सिर्फ हमारे जीवन में प्रभाव लाने के लिए नहीं, but to impact those around us. परंतु जो लोग हमारे आजू बाजू है उनके जीवनों में भी प्रभाव लाने के लिए। So at our last camp in Karjat, if you all remember, जो हमारा पिछला कैंप हुआ था कलीसिया का करजत में, I was sitting behind one of the days and just worshipping. एक दिन मैं ऐसे ही पीछे थी और मैं सिर्फ आराधना कर रही थी, And I was just saying, thank you, God. Thank you for this. Thank you for my family. Thank you for giving me such a good husband, such a good life. तो मैं परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद कर रही थी अच्छे जीवन के लिए, अच्छे पति के लिए, और सब कुछ चीजों के लिए। And Jesus stopped me there. और यीशु ने मुझे वहां रोक दिया। He said, everything is not about you, Jillian. यीशु ने कहा कि हर चीज जिलियन तुम्हारे बारे में नहीं है। And again, I was in shock और फिर मैं अचंभित हो गई, because in my head, everything is about me. मेरे दिमाग में तो सब चीज मेरे बारे में ही थी। But Jesus told me, nothing is about you. यीशु ने मुझसे कहा कि कुछ भी तेरे बारे में नहीं है, It's about the work that I am doing and going to do through you for my kingdom's ये वो glory. कार्य के बारे में है जो मैं तुम्हारे द्वारा करने वाला हूँ और कर रहा हूँ। Jesus' mercy goes beyond us. यीशु की जो दया है वो हमसे भी बढ़कर आगे जाती है। So all the blessings, all the mercy that you have received, तो जितनी भी आशीष आपको मिली है, जितनी भी दया आपको मिली है, it's not just for you. वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, It has the power to change the world around us. उसमें सामर्थ है जो दुनिया है उसे बदलने के लिए। We're going to look at verse 39 and 42 now. तो 39 और 40 वचन देखेंगे।
Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's. So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them, and he stayed for 2 days. And because of his words, many more became believers. They said to the woman, "We no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man is the Savior of the world." उस स्त्री ने यह गवाही दी थी, उन्होंने मुझे वह सब जो मैंने किया बता दिया। इस कथन के कारण उस नगर के बहुत से सामरियों ने यीशु में निवास किया। इसलिए जब वे यीशु के पास आए, तब उन्होंने अनुरोध किया, आप हमारे यहाँ रहिए। वह 2 दिन वहीं रहे। बहुत से अन्य लोगों ने उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया। सामरी लोग उस स्त्री से बोले, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए हैं कि सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। Just the testimony of this woman transformed that entire town. सिर्फ इस स्त्री की गवाही ने उस पूरे शहर को बदल दिया, परिवर्तन कर दिया। That is the power of Jesus' mercy. और ये सामर्थ है यीशु की दया में। You know, today we are living in a broken city. तो हम ऐसे शहर में रह रहे हैं जो बहुत ही टूटा हुआ है अंदर से। There are so many things that are wrong in our nation, बहुत सारे चीजें हैं हमारे राष्ट्र में जो गलत है, and they so need the mercy of Jesus. और उन सबको यीशु की दया की कितनी ही जरूरत है। And while small acts of kindness are great, और हमारी जो छोटी छोटी कार्य है दयालुता की, the world needs someone that will dare to dig deeper, uncover the mess, and give them Jesus. तो लोग चाहते हैं ऐसे लोग हम बने जो उनके गड़बड़ी में आए और उसे प्रकाश में लाए और उनको दया दिखाए। And who is that someone? और वो कौन है? You and me. आप और मैं। Mumbai is known as a city of dreams. तो मुंबई ऐसी शहर, सपनों का शहर कहलाया जाता है। And there are so many young people who come in to find jobs and fulfill their dreams and make a big career. और कितने ऐसे युवा है जो यहाँ आते हैं अपना करियर बनाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, अच्छे से पैसे कमाने के लिए। And when they come here, leaving their families and comfortable life behind, और जब वो यहाँ आते हैं अपने जो आरामदायक जीवन है उसे छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, they really struggle with loneliness. तो वो बहुत ही ऐसे अकेलापन में संघर्ष करते हैं। You must know someone who's living alone in your building or your area. शायद आप कुछ लोगों को ऐसे जान सकते हो जो आपके आजू बाजू में रहते होंगे। Maybe we can reach out to them and give them the love of Jesus. शायद हम उनके पास जा सकते हैं और यीशु की दया दिखा सकते हैं, प्रेम दिखा सकते हैं। The work culture today in our country is so hectic and so stressful. जो काम करने का तरीका है वो इतना ही ज्यादा संघर्ष वाला है अभी। The pressure of work is so much that people are being forced to neglect their family life, their children, and there's really no time for anything. So काम इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग अपने परिवार को और खुद को उतना समय नहीं दे पाते हैं। How can we as Christians come in and help them? तो हम मसीह होने के नाते कैसे उनकी परिस्थिति में आकर उनकी मदद कर सकते हैं? There are so many people in our society, the older people who are left alone at home, where the children are either gone abroad after getting married or studying or whatever. तो हमारे बिल्डिंग में या जहाँ हम रहते हैं वहाँ ऐसे बुजुर्ग लोग हो सकते हैं, शायद उनके बच्चों की शादी हो गई हो या ऐसा कुछ, और वो अकेले रह रहे हैं। Maybe some of the youngsters can go and start reaching out to them. तो कुछ युवा वहाँ जा सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, समय बिता सकते हैं। There are so many different things that people are struggling with around us. तो कितनी अलग अलग तरीकों की चीजें हैं जो हमारे आजू बाजू लोग संघर्ष कर रहे हैं। And the last thing they need is judgment. और जो अंत में उनको अगर कुछ चाहिए होगा तो वो होगा कोई न्याय करे उनके लिए, Or even worse, sympathy. और उससे भी बदतर होगा कोई सहानुभूति दिखाए। Or we can just go around ignoring them. या हम उनको अनदेखा करके बस अपने जीवन में चीजें करते रहे। Can we be people who share the truth and bring the truth about Jesus? क्या हम वैसे लोग बने जो सच्चाई लाए और यीशु का प्रेम दिखाए उनको?
truth that will transform their lives. ऐसी सच्चाई जो उनके जीवन को परिवर्तन कर दे। And yes, maybe they may have bigger issues. और शायद उनकी परिस्थिति और जो चीजें हैं वो उनसे बड़ी हो, समस्या बहुत बड़ी हो, They may be rejected by the world. शायद उनको नकारा गया हो पूरी दुनिया में, And we can't solve all their problems. और उनकी हर एक समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते, But we can give them Jesus. पर हम उनको यीशु दे सकते हैं। Just like the testimony of that woman, जैसी वो गवाही है वो सामरी स्त्री की, our testimony is as powerful. हमारी जो गवाही है वो भी उतनी ही सामर्थशील है। Do you believe that, church? क्या आप विश्वास करते हैं इस चीज को? Do you believe your testimony has power to change क्या lives? आप विश्वास करते कि आपकी गवाही में सामर्थ है लोगों के जीवनों में परिवर्तन लाने के लिए? So let's not make it all about us. तो आइए हम सब चीज अपने बारे में ना बनाएं। Let's not enjoy this lovely mercy of Jesus and keep it for us. तो ये जो यीशु की दया है इसको ऐसे आनंद लेते हुए सिर्फ हमारे तक ना रखे, But use it to its fullest power पर इसका इस्तेमाल करे पूरी तरीके से, to transform lives around us. जो हम इस्तेमाल करें लोगों के जीवनों में परिवर्तन लाने के लिए। The story of the Samaritan woman reminds us that mercy is not just a passive act. तो ये जो कहानी है सामरी स्त्री की, ये हमें याद दिलाती है कि जो ये दया है ये सिर्फ ऐसे दबाने के लिए नहीं है। Jesus met one broken, rejected woman at a well. यीशु एक महिला से मिला जिसके जीवन में वो बहुत टूटी हुई थी। He spoke the truth about her life. उसके जीवन की सच्चाई बताई। He gave her the truth about who he is. यीशु ने अपनी सच्चाई उससे बांटी, And an entire community seen revival. और उसके द्वारा पूरा जो समाज है उसने पूर्ण जीवन पाया। This is the kind of mercy we are called to show. ऐसी दया है जो यीशु चाहता है हम दर्शाए। A mercy that goes beyond an act of kindness but transforms lives. ऐसी दया जो दयालुता के कार्य से भी आगे बढ़कर लोगों के जीवन को परिवर्तन करे। A mercy that dares to speak the truth but in love. ऐसी दया जो हिम्मत रखती है सच्चाई को बोलने के लिए परंतु यीशु के प्रेम में। And a mercy that reaches beyond ourselves but even reaches out to others. ऐसी दया जो सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं है परंतु लोगों के पास जाती है और उन्हें दर्शाती है। Let's not allow our pride and anger and self-righteousness to get in the way. तो आइए हमारी जो घमंड है या आत्म धार्मिकता है या हमारा जो क्रोध है, ऐसी कोई भी चीज हमें रोके नहीं। Let's be people who can show mercy that transforms lives. ऐसे लोग बने हम जो दया दिखाए जिसके द्वारा लोगों के जीवनों में परिवर्तन आए। All right, we are just going to close with a prayer now. तो अंत में हम प्रार्थना से खत्म करेंगे। Yes, Lord Jesus, we just thank you for speaking to each of our hearts today. यीशु धन्यवाद हम सबके हृदय में बात करने के लिए। And even as you're revealing to us the truths about what mercy really is. और जैसे आप हमें दिखा रहे हैं कि असली दया क्या है, I pray that you reveal some truths about our own life to us that we need to change. मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसी चीजें हमारे जीवन के बारे में हमें दिखाए जो हमें बदलना है। And all the people who we can think of right now who need your mercy. और ऐसे लोग जो हम याद करें इस समय जिनको आपकी दया की जरूरत है, We also bring them before you. उन सब लोगों को यीशु आपके पास लाते हैं हम। I pray, Lord, that you show us ways that we can show mercy just like you want us to. मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप वो तरीके दिखाए जिससे हम आपकी दया उन लोगों तक लेकर जाए। Mercy that goes beyond simple acts of kindness. ऐसी दया जो सिर्फ साधारण दयालुता के कार्य से भी बढ़कर करे। Mercy that brings truth that transforms lives. ऐसी दया जो सच्चाई को लाए और लोगों के जीवनों में परिवर्तन लाए। And I pray, Lord, that you give us the courage and grace to step out and take hold of this. और हम प्रार्थना करते कि हमको हिम्मत दे, धाड़स दे कि हम उससे आगे बढ़े लोगों के जीवनों में। For each one of us, dear Lord. हम सबके लिए यीशु, Big and small, छोटे और बड़े, old and young. जो युवा है और जो बुजुर्ग है, May we all carry your mercy like you want us to. हम सब वो दया आपकी है वो लेकर चले और लोगों को दे। In Jesus' name I pray. Amen. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन।